Hello everyone. This side Poonam Grover for from St Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am start with my lecture number 17, which are came under Unit 4, and myself is Poonam Aroda, Assistant Professor in Electronics and Telecommunication Department, and I am teach the subject that is Digital System Design, which are came under CSC Electrical 6 semester students. So in my today lecture, I will cover the various topic that is design and implementation using the FPGA. So that is a very interesting topic as per your exam point of view also. So what do you mean by design implementation with the help of your FPGA? So the FPGA, that is called your field programmable gate array. So as discussed in my previous video, I totally explain what is the block diagram of FPGA and the FPGA how that should be connected with the help of your switches and your other phenomena. So here we mention uh, uh, this is because both of the FPGA design and VHDL programming languages are quite new and useful to accomplish various tasks in the field of research for digital system design. क्योंकि आजकल जितनी भी डिजाइनिंग है वो हमारी जो डिजिटल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, लॉजिक सर्किट की डिजाइनिंग वो हम VHDL के सॉफ्टवेयर से या FPGA के थ्रू करते हैं. क्लियर? सो दिस बोथ आर द कंसेप्ट, यानी कि इन लैंग्वेज को समझना और इनके टूल्स पे काम करना, दैट इज अ वेरी मच इजी प्रोसेस एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. लाइक जैसे मान लो कई स्टूडेंट को एम्बेडेड सिस्टम पे काम करना बहुत टफ लगता है बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद योर एम्बेडेड सिस्टम्स. सो बट यानी कि जो एफपीजीए है, एफपीजीए या वीएसडीएल पे वर्क करना है तो आपको कुछ टूल्स होते हैं अवेलेबल सॉफ्टवेयर, उन पे सिंपली आपको काम करना आना चाहिए. उसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े लॉजिक सर्किट को बड़े इजी वे से क्या कर सकते हैं, किसी भी चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आज हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो एफपीजीए की चिप के ऊपर करनी है. क्लियर? तो मैं इसका एक डायग्राम आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसकी हेल्प से आपको ये चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी. सो इन माय टुडे वीडियो आई विल cover the topic 4-bit BCD adder, parallel 4-bit comparator, and stepwise development for vital soft logic design flow. And एज पर माई इंट्रोडक्शन कि जो लाइक कई बच्चे होते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम रहती है कि जैसे मान लो आपने कंट्रोलर के ऊपर कुछ प्रोग्राम लिखने हैं या फिर आपने लाइक आपके पास रिसोर्स की फैसिलिटी कम है, तो आप उस टाइम पे लाइक दैट इज अ वेरी इजी टूल, यू कैन से Xilinx tool is very easy tool for your VHDL programming. So सो कई बच्चे क्या होते हैं कि लाइक एम्बेडेड के नाम से ही कहते हैं कि हमें ये नहीं आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो VHDL का Xilinx सॉफ्टवेयर टूल है, दैट इज वेरी मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विच रिक्वायर अ टाइम ऑपरेशन, लेस पावर कंजप्शन एंड फास्टर इन ऑपरेशन. So the FPGA two-dimensional array of logic blocks of flip-flop with an electrical programmable interconnection between the logic block as shown in figure. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक 5G का डायग्राम दिखाया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड योर CLB, you can say configurable logic block. So configurable logic block that is called here, that is simple say by that is a one figure for your CLB. Here we use the lookup table that will be came under various function. जैसे सपोज करो कि उस लुकअप टेबल के अंदर एक आपने एडर के कई फंक्शन, जैसे आपने एक एडर डिजाइन किया तो उस एडर के कई फंक्शन इंप्लीमेंट होंगे. जैसे ए पे उसका सम आ रहा है, बी पे उसका सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है. तो लुकअप टेबल विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पर्टिकुलर फंक्शन को आउटपुट पे क्या करवाएगा, यानी कि अनेबल करवाएगा विद द हेल्प ऑफ योर D flip flop. Clear? So that is a one figure of CLB. But in case of your FPGA, we can use the many CLB blocks, and these CLB blocks are interconnected with the help of your interconnecting wires. So here we use the that is called your switching block that provides the necessary facility between your two CLB blocks, and that CLB blocks can be communicate with their peripheral or outside words with the help of your input block. So that is one that is called your CLB, and the figure for one CLB is mentioned here. So that is a diagram for your FPGA device. तो उसने क्या कहा है यहाँ
कि जैसे कि हम उसमें क्या यूज करते हैं, आपने कई CLB ब्लॉक यूज कर रखे हैं दैट बी इम्प्लीमेंटेड बाय low level fan in gates which is offer more compact design in contrast to an implementation with two level and or logic। यानी कि अगर हमने जैसे मान लो पाल एंड PLA पढ़े हैं, ये उसका भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन यूज करते हैं। जैसे CPLD आपने स्टडी किया था, CPLD स्टैंड फॉर योर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल गेट एरे, जिसमें हमने एरे ऑफ पाल एंड PLA यूज किया था। अब आप एरे ऑफ पाल एंड PLA को अगर एक ही चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर लाइक आपका क्या बन जाएगा, FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। यानी कि जो आपका FPGA है वो CPLD का भी क्या है, एडवांस वर्जन है। तो जो FPGA है वो आपके ट्रांजिस्टर से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है, that should be possible with the help of your FPGA in very flexible way. So the FPGA is very much useful phenomena as per your design implementation. Clear? So here we discuss the जैसे सपोज करो उसने एग्जांपल शेयर किया है कि अगर आपने एक BCD एडर बनाना है, तो आप उस BCD एडर को एक CLB ब्लॉक के अंदर, CLB जैसे मैंने आपको दिखाया है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि ये आपके ये CLBs हैं, तो इन CLBs के अंदर मैंने सपोज करो कि एक एडर बनाया। ठीक है, अब एक एडर से आप ये तो है नहीं कि एक एडर का फंक्शन भी सोल्व कर सकते हैं। जो ये एक एडर है, उस एडर जो एक एडर है उसके अंदर वेरियस फंक्शन आपने इंप्लीमेंट किए हुए हैं उस एडर से रिलेटेड। तो फंक्शन आपके जैसे क्या है कि जैसे उस एडर से आप एडिशन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप उस एडर से कोई अनदर फंक्शन भी आप बड़े इजीली वे से विदाउट मॉडिफिकेशन भी हैंडल कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द मॉड्यूल वी कैन से। ठीक है, तो आपने क्या किया, सॉरी, सो हम क्या करेंगे कि जो हमने लाइक वेयर एड्रेस आर कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म हाई स्पीड अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द डिजिटल सिस्टम एज लॉजिक सर्किट अपार्ट फ्रॉम अदर फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे हम एक एडर बनाने से हम उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो विदाउट मॉडिफिकेशन मॉड्यूल्स बड़े इजीली वे से हैंडल कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो कैपेबल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन मैग्नीट्यूड। हम साइन मैग्नीट्यूड को भी बड़े इजी वे से हैंडल कर सकते हैं उस एडर से, लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इट मींस इतने सारे जो फंक्शन है लाइक एडर सब्ट्रैक्टर, ये सारे एक ही CLB ब्लॉक के अंदर है। क्लियर? तो जैसे मान लो एड्रेस जो है वो एड्रेस रिलेटेड जितने भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है वो एक CLB ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो इस तरह से अगर आपने प्रोसेसर को आपने FPGA के थ्रू डिजाइन करना है, तो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट and that should be carried by various CLB block, and whenever these CLB block that should be configured, we can say implement with the help of your FPGA, you can make the microprocessor with the help of FPGA in very easy process. Clear? So so in industrial and economical purposes that require a large amount of input output conversions। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कन्वर्जन्स भी बड़े इन्वॉल्व करने पड़ते हैं अपनी सिस्टम की IC में। तो वो कन्वर्जन्स क्या होंगे कि जैसे सपोज करो कि जैसे आपने बोला है कि लाइक हमने एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए आपने एक एडर बनाया, तो उस एडर को आपने एक CLB ब्लॉक के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो जो वो एक 1 CLB ब्लॉक है ना, तो वो आपके एक एडर का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, that will be perform the related function of your adder, either adder subtraction multiplication and division in very easy way। ठीक है, तो अब हम उस एडर से, जैसे आपने उस एडर से जैसे मान लो उस एडर से आप अपने एड्रेसेस को कंप्यूट करवा सकते हैं, इंडेक्स टेबल एंड सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन भी बड़े इजी वे से उस एडर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस आपका एक एडर बनाने से आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक से लेकर इंडेक्स टेबल की कैलकुलेशन और उसके ऑपरेशन को भी आप बड़े इजी वे से उस एडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपका देखो एक CLB कितने कोजेस को हैंडल कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह आप अगर एक एडर बनाने के लिए एक CLB यूज कर रहे हैं, तो अगर बड़ा सा अगर कोई प्रोसेसर डिजाइन करना है, वैसे ही जो अनदर CLB ब्लॉक होगा वो किसी मेमोरी को नोट करेगा, तो उस मेमोरी के अंदर आप रोम, रैम, कैशे मेमोरी या फिर अदर मेमोरी को बड़े इजी वे से डिजाइन कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो उसके कंप्यूटर्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनको हम CLB के थ्रू हम इम्प्लीमेंट में लेके CLB के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको फिर हम FPGA के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद दैट शुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ वायर्स, एंड सो होल ऑफ द
FPGA chip will be work as a microprocessor. Clear? So here we show the block diagram of your FPGA plus your architecture of your FPGA and the technical FPGA based logic design flow. जैसे मान लो आप आजकल जो लॉजिक डिजाइन आ रहे हैं, जैसे FPGA का जो डिजाइन फ्लो मैं अब आपको नेक्स्ट में स्टडी करवाऊंगी, तो उसमें जो FPGA के अंदर हमने एक CRC एरर करेक्शन और डिकोडर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है. CRC स्टैंड फॉर योर करेक्ट, मतलब कि करेक्शन ऑफ एरर. क्लियर? ठीक है, तो ये जो फीचर है वो आपके FPGA को और भी मोर एडवांस बनाएगा. सो इस फीचर के ऐड होने से क्या होगा, FPGA बेस्ड न्यू हाइब्रिड एडेड डिजाइन with the optimal bit bandwidth configuration. Their work is centered towards the design of a specific technology and some implementation challenges, providing high level automatic methodology for designing hybrid adders. तो आपके कुछ लाइक उस जब आप उसने उसने आपने जो ये एडर बनाए हैं, जो कि एक एडर जो है वो आपके एडिशन मल्टीप्लिकेशन से लेकर इंडेक्स टेबल और अदर एड्रेसेस कंप्यूटेशन की फैसिलिटी आप एक ही एडर से लाइक एलिजिबल करवा सकते हैं. तो जब आपने उसको एक FPGA के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, FPGA के ऊपर उस एडर को आपने डिजाइन किया है, तो उस FPGA के थ्रू क्या करेंगे कि आप दैट प्रोवाइड अ न्यू हाइब्रिड टाइप डिजाइन with neglecting the low level circuit issues. क्लियर? तो उसमें जो लो लेवल सर्किट इशू रह जाएंगे उसको हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो हाई लेवल पे आपकी चीजें आ रही हैं उसको हम इग्नोरेबल नहीं कर सकते. तो इसी तरह अगर आप उस डिजाइन को आपने जाइलिंग पे करवाना है, दैट इज अनदर पार्ट. जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, इसका एक और टूल भी आता है, दैट इज कॉल्ड योर अल्ट्रा DET बोर्ड. Was demonstrated by these work present an experimental implementation of digital logic design on the Ultra DE2 board, which is an accessible education and development board. It helps to check the flexibility implementation with FPGA and to get the better and safe ways to use these specification during any design implementation. जैसे मान लो आपने अपने डिजाइन को जो FPGA की implementation की है, जैसे मान लो उसका एक अनदर टूल है दैट इज कॉल्ड योर अल्ट्रा DE2 टूल. ठीक है, तो ये जो टूल है, जब आप किसी भी कोड को इसके ऊपर भी कोड लिखेंगे, तो जो इससे आपका जो लाइक सिंथेसिस और सिमुलेशन के बाद जो फंक्शन बनके तैयार होगा, उसको हम FPGA की चिप के ऊपर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दैट इज आल्सो प्रोवाइड योर सेफ एंड इजी वे टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर डिजाइन ऑन योर FPGA चिप. क्लियर? सो उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट द डिजाइन फ्लो ऑफ योर बेस ऑफ योर FPGA बेस्ड मेथोडोलॉजी. ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है उसने कि FPGA सर्किट डिजाइन टेक्निक डिजिटल लॉजिक बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस विद कॉन्फ़िगरेशंस एज वेल एज सिमुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन विद VHDL यूजिंग 4-bit BCD एडर एंड पैरेलल कंपैरेटर. तो मैंने अपने इस लाइक जैसे मान लो आपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस बनाए थे, तो उसमें आपने वेरियस एरे ऑफ पाल एंड PLA यूज किया था. तो अगर आप वेरियस एले एंड पाल एंड PLA यूज करते हैं, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि एक जो PLA है वो आपने एक BCD एडर के लिए यूज किया, अदर कोई कंपैरेटर के लिए यूज किया है, तो उसको मिला के आपका एक CPLD बनेगा. क्लियर? ऐसे अगर आपने FPGA बनाना है, तो आप FPGA के थ्रू एक बहुत बड़े प्रोसेसर को बड़े इजी वे से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और सो टोटल अंडरस्टैंडिंग ओवर द कॉम्प्लेक्सिटी इन द डिजाइन फ्लो ऑफ FPGA based logic circuit. The FPGA contain thousands of basic logic gates with advanced sequential logic function all together in a single package. यानी कि इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट भी होंगे और सिक्वेंशियल भी होंगे, लेकिन वो सारे एक सिंगल पैकेज के ऊपर क्या होंगे, आपके इम्प्लीमेंट होंगे. Since the internal digital logic has not been configured to perform any function, the only way to make these devices useful to configure it by using the FPGA computer software like Xilinx ISC design. तो अगर जैसे मान लो उसने ये बोला हुआ है कि हम वैसे जैसे मान लो अगर हम इसको सिंगल पैकेज में करें, तो लाइक हम उसको काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को FPGA के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे ना यूजिंग Xilinx सॉफ्टवेयर, तो हम उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को बड़े इजी वे से एनालिसिस करके देख सकते हैं कि अगर आपने Xilinx के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है, तो वो प्रोग्राम सिमुलेशन और सिंथेसाइज होने के बाद कैसे आपके FPGA के बोर्ड के चिप के ऊपर क्या होता है, आपका इम्प्लीमेंट होता है. क्लियर? सो FPGA डिजाइन फ्लो विच इज थ्रू आ प्रोसेस कॉल्ड स्कीमेटिक कैप्चर. इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्कीमेटिक कैप्चर लेते हैं. दिस रीड्स एक स्कीमेटिक कैप्चर के थ्रू आप क्या करोगे कि उस ग्राफिक ड्राइंग को रीड करोगे
कि उस स्कीमेटिक कैप्चर को आप रीड करोगे। रीड करने पर जो आपको बाइनरी फाइल मिलेगी, दैट इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लॉजिक टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो हमें ये डिस्क्राइब करेगी कि हमने कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि पहले आप स्कीमेटिक कैप्चर को बाय द यूज ऑफ Xilinx सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रीड करवाओगे। रीड करने पर उसका बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, जिसकी बाइनरी इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस लॉजिक को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। क्लियर। सो अगर इम्प्लीमेंट एंड जनरेटेड अ VHDL कोड, तो आप क्या जनरेट करोगे, उससे रिलेटेड एक VHDL कोड को जनरेट करोगे। ठीक है। सो दिस बाइनरी फाइल इज यूज्ड एज एन इनपुट इन अ प्रोग्रामिंग प्रोसेस that electronically alters the internal parts of PLD connection to make its function specifically as required. क्लियर। सो द अनदर अप्रोच जो है वो क्या है कि PLD है। PLD के अंदर हम एक VHDL लैंग्वेज में, दैट इज वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इन दिस केस द इनपुट और आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट होती है आपकी, उसको आप लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करते हो। क्लियर, एज पर योर एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट। तो उसके लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन करने के बाद आपको उसकी स्कीमेटिक और वेव फॉर्म जो है शो हो जाएंगी। उस वेव फॉर्म को आप टेस्ट ब्रांच में जाके चेक कर सकते हैं एज पर योर एनालिसिस। So that is another approach using VHDL, और that is the approach using FPGA. क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो एक आपको लाइक प्रोग्राम दिखाया है एज पर योर FPGA डिजाइन फ्लो। आपने एक एंटिटी को डिक्लेयर किया है, तो उस एंटिटी के अंदर आपने पोर्ट AB एज एन इनबिट एंड X एज एन आउटपुट डिक्लेयर करवाया है। क्लियर। तो उसके बाद आपने क्या किया कि जो X है वो आपका क्या है, A एंड B एंड आर्किटेक्चर करवा दिया। क्लियर। सो इसमें क्या हुआ, दिस जो इसमें फिगर 3 है, that will be show your FPGA block diagram of an FPGA design and implementation, while the 4 gives the details of design flow of an FPGA circuit simulation, behavior, synthesis and its implementation. So that is called your FPGA design flow. तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको इस फिगर में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया क्योंकि नीचे का पार्ट मेरे से कट हो गया है। तो उसमें क्या करना है कि आप जो भी आपने जो पहले बताया कि हम एक स्कीमेटिक की फाइल को रीड करेंगे, उसको रीड करने के बाद हमें कुछ बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक उन बिट्स को हम क्या दे देंगे, लाइक सिमुलेटर को देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोग्राम जनरेट करेगा, VHDL कोड जनरेट करेगा। और दैट फिर उस प्रोग्राम को हम रन करने के बाद FPGA की चिप के ऊपर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज अ वन अप्रोच फॉर FPGA। another approach for behavioral implementation, that is for FPGA design flow। इसमें क्या होगा कि जो आपका स्कीमेटिक बेस होगा, एंट्री होगी स्कीमेटिक बेस की, उसको आप उसके डिजाइन के अंदर, जो स्कीमेटिक टाइप की आपकी डिजाइन फ्लो है, उसके अंदर, उस डिजाइन के अंदर वो डिजाइन आपको ये देगा। और ये स्कीमेटिक जो डाटा है वो आपके बिहेवियर सिमुलेशन को दे देगा, जिसके अकॉर्डिंग ये जो स्कीमेटिक इंफॉर्मेशन है वो बिहेवियर सिमुलेशन द्वारा रीड की जाएगी। रीड करने के बाद जब हम उसको सिंथेसाइज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो है लॉजिक डिजाइन क्या है वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो दैट विल बी केम अंडर विद योर timing constraint and you can say your other part। So on the behalf of this logic design implementation, you can read the file with the help of your computers। So that will be generate a bit, मतलब कि बिट की फाइल जनरेट करेगा। सो उस बिट फाइल के अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, आप VHDL कोड को डिजाइन करोगे। क्लियर। तो अब उसने एक प्रोसेस फॉर द बिहेवियरल सिंथेसिस फॉर 4-bit BCD एडर यूजिंग स्कीमेटिक, जैसे उसने वही सेम चीज बार बार शो की हुई है कि हम जब भी FPGA को सिंथेसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिलोग या VHDL के थ्रू, तो हम क्या करेंगे कि सिंथेसाइज करने के बाद जब उसकी सिमुलेशन ओके आ जाएगी, तब हम उस 4-bit जो भी हमने 4-bit BCD एडर विद द हेल्प ऑफ VHDL टूल डिजाइन किया है, उसको हम उस FPGA बोर्ड की चिप के ऊपर क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो किसी भी लाइक इंटरनल आर्किटेक्चर को अगर हमने Xilinx के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है, तो Xilinx की फाइल, जब Xilinx के सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करोगे, तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाके जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसको आप लाइक प्रोजेक्ट का नेम डिसाइड कर उसको फिनिश कर दोगे, तो आपकी एक न्यू सोर्स जो है जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, the schematic and type of file name, then click on the next button and click on the finish button. It means आप लास्ट में जब तक वो एंटिटी जनरेट नहीं हो जाती तब तक उसको कंटिन्यू करते हुए फिनिश बटन पे आओगे। जैसे ही फिनिश करोगे वो एंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट के लिए डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपने लाइक उस प्रोग्राम का जो है बिहेवियर है वो उसके लाइक जहाँ पे वो फाइल न्यू सोर्स के नाम से एग्जिट हुई है यानी एग्जिस्टेंस में आई है, तो click on add symbol to select a logic symbol in order to begin the design. So two XOR gate inputs, two AND gate inputs and one OR gate input where the selected to create a single bit full adder. क्लियर। तो जब आपने लाइक उसका कोड लिखा, उसको फिर सिमुलेशन में जाके रन किया, तो आपको इस तरह से एक स्कीमेटिक जो है वो जाइलिंग के ऊपर शो होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ये स्कीमेटिक व्यू है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ एफपीजीए। जो उसके पास एफपीजीए लाइक प्रोग्रामिंग के थ्रू एफपीजीए बोर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तब इम्प्लीमेंट होगा जब आपने, जैसे सपोज करो कि आपने एक बहुत बड़ा सर्किट बनाना है, उसमें जो है आपका एक हाफ एडर जो आपने एक 1 बिट फुल एडर डिजाइन किया है वो एक सीएलबी का पार्ट है। क्लियर। तो एक सीएलबी की जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी। क्लियर। सो दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम फॉर योर 4 बिट बीसीडी एडर। जैसे पिछले वाला आपका था 1 बिट फुल एडर था और सिंगल बिट का फुल एडर का था, और ये वाला क्या है, 4 बिट बीसीडी एडर। ठीक है। सो अगेन यू कैन कम विद योर टेस्ट ब्रांच। सो इसमें क्या हुआ कि वही सेम है, लाइक इन दिस डिजाइन प्लेन क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट पॉइंट टू ए न्यू, जैसे अपने न्यू सोर्स पे गए, देन सेलेक्ट द स्कीमेटिक एंड फिल द फाइल नेम, click on the finish button, new schematic design to be simplified and saved. This is just for the ease of configuring the system. Clear. So um, uh, click next, click on the add pin tab and click on next and finish. That is the same procedure for finding your 4 bit adder with the help of your like with the help of Xiling you should be implemented. तो जब आप किसी फंक्शन को लाइक रन करके सिमुलेशन में आते हो या फिर सिंथेसाइज करते हो, तो आपको सिंथेसाइज करने पर उसका इस तरह से एक आरटीएल व्यू शो हो जाता है। उस आरटीएल व्यू को फिर आप लाइक जब डबल क्लिक करते हो तो उसका गेट लेवल व्यू शो होगा। फिर उस गेट लेवल व्यू को आप किसी एफपीजीए बोर्ड के ऊपर क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद सम स्पेशल प्रोसीजर। जैसे अब इसने एक विजुअल कोड सिंथेसाइज एंड सिमुलेशन कंपैरेटर यूजिंग वीएचडीएल प्रोग्रामिंग, उसने अब एक पैरेलल कंपैरेटर बनाया है। तो एक किसने पूरा ये लिख रखा है वीएचडीएल की फॉर्म में। लाइक आप अगर वीएचडीएल के ऊपर लाइक कोई काम करना चाहते हो तो एक न्यू सोर्स का आप मॉड्यूल जनरेट करोगे, उसको ओके करोगे, देन उसके अंदर पोर्ट की डिक्लेयर करोगे। ठीक है। तो आपका ये पूछेगा कि इस न्यू, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यस करोगे। यस करने के बाद आप उसके अंदर कोड लिखोगे। ठीक है। उसको आप किसी लाइक उसको सिमुलेशन में जाके रन करोगे और उसका स्कीमेटिक और व्यू देखने के लिए आप लाइक उसके अंदर टेस्ट ब्रांच में जाके लाइक उसके वैल्यूज को चेंज करके उसकी वेव को सिमुलेट करके देख सकते हो। अगर इफ न्यू प्रोजेक्ट इन डॉट वीएचडीएल इज क्रिएटेड, अगर वो क्रिएट हो जाता है तो हम लॉजिक डिजाइन पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो उसका आपको गेट लेवल व्यू शो हो जाएगा। सो वैसे ही सेम है कि अगर हमने कुछ कोड लिखा, उसको मिरर में जाके सिमुलेट किया, तो वो नीचे कई बार अगर मान लो उसमें कोई चीज़ कोड में ओके नहीं है तो वो एरर भी शो कर सकता है। So select simulator, double click on behavioral check syntax and finally click on the behavior model to run the simulation and then end. Clear. So that is a proper procedure for using your Xiling tool for making the यानी कि coding with the help of your VHDL. Clear. So इसने यहाँ लाइक कंपैरेटर शो बना रखा है। उसके ए जो है वो आपका कंपैरेटर के लिए 3 डाउन टू, आपने 4 बिट को कंपेयर किया हुआ है तो उसकी वैल्यू 3 डाउन टू 0 ले रखी है। तो उसमें आपका जो W है कंपेयरिंग करने के लिए उसने यहाँ इग्नोर गेट यूज कर रखा है। इसमें A0 इग्नोर विद B0 एंड अगेन सॉरी लाइक आपका A2 इग्नोर विद एंड सो ऑन एंड ग्रुप, ये कंपैरेटर आपका डिजाइन हो गया। जैसे आपको इसने रन में जाके सिमुलेट किया
सिंथेसाइज एक्सटी करोगे, तो उस केस में आपका ये एक स्कीमेटिक व्यू जनरेट होगा। जब इस स्कीमेटिक व्यू पे आप डबल क्लिक करोगे और तब आपको उसका एक लाइक ऐड करने पर एक आरटीएल व्यू शो होगा, और आरटीएल व्यू को जब आप डबल क्लिक करोगे तो उसका गेट लेवल और नेटलिस्ट लेवल व्यू आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? So by the use of VHDL tool, we can easily, you can say, implement any function on your FPGA board. So here we also discuss the तो लास्ट में आपको एक सिमुलेशन वेवफॉर्म दिखाई हुई है बीसीडी एडर की, जिसके अंदर उसने टाइम पीरियड एट 100 नैनो सेकंड और यहाँ पे 200 नैनो सेकंड लिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हैं। सो हेयर वी शो द यू कैन से you can say VCD bit adder related. So here I will totally described, जैसे इसने यहाँ पे एक लाइक सिंपल डिस्कशन के थ्रू बता रखा है। So that is a FPGA implementation is a very easy process as compared to your you can say embedded system। यानी कि इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने लाइक जैसे एक माइक्रोप्रोसेसर बनाना है, तो माइक्रोप्रोसेसर के लिए आपको एडर से लेकर लाइक लुकअप टेबल्स और यू कैन से मेमोरी, सीपीयू, इन सभी को आपने लाइक सीएलबी ब्लॉक के थ्रू लाइक कॉन्फ़िगर करके एफपीजी के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया। उस एफपीजीए में फिर आपने इंटरकनेक्टेड वायर्स और स्विचेस की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आपका एक प्रोसेसर के लिए एक एफपीजीए जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आपने उस प्रोसेसर को एफपीजीए के थ्रू बनाया। तो इट मीन्स अ लार्ज लॉजिक डिजाइन आल्सो विद द हेल्प ऑफ योर एफपीजीए इन वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल वे। सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।